friends, today we'll think about the next part 2, current electricity, chapter 3. You know that very well, very important chapter already. It started and we start this chapter, you know that very well, with most IMP quantity electric current. So what do you mean by electric current? You know that very well. Electric current, that means the rate of flow of charge. So I is equal to dq by dt. You know that very well. And the very important formula of current, I is equal to dq by dt. You know that I is equal to dq by dt. And from this equation you would like to find charge, then charge is equal to I dt. And the last part, number 1, we also discuss very IMP, we can say that numerical based on this equation. After that we discuss most IMP point about the Ohm's law. You know that very well. In a fixed physical condition, current passing through conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor. And from this equation V is equal to Ri. So R is equal to simply V by I. This is your Ohm's law, most IMP formula. In the last lecture we derived, you know that very well. Based on this equation, you know that very well, resistance of any conducting wire depends upon few factors. For example, you know that very well, resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to the area of a cross section. So R is directly proportional to L by A. So if you remove this proportionality sign, then rho L by A. You know that very well, masterpiece formula. In this equation, this proportionality constant rho, it is called simply resistivity. And you know that very well, resistivity depends upon few factors like type of materials, simply temperature and pressure existing on the material. Don't forget, this resistivity is totally independent of, you can see, the dimension and shape and size of the material or given conducting wire. Friends, after that we discuss the most IMP relationship between, we can say, the resistance and length. So R is directly proportional to L square. Then R is inversely proportional to the square of area. Then R is inversely proportional to the fourth power of radius. And R is directly proportional to M and inversely proportional to the square of length. Most IMP, all shortcuts we discuss. And now today we start the lecture with supreme, we can say, the quantity. It is called current density. So please be alert. Today's lecture, I can say, one of the most IMP lecture of this chapter. So be alert about this current electricity part 2. So we start with, we can say that the most IMP quantity, it is called current density. It plays very important role in the, we can say, the future point of view. So current density, you have idea about electric flux. Electric flux simply provides information about the amount of, we can say that, number of electric field lines. It gives idea about the electric field, कितना electric field pass हो रहा है, or you can consider number of electric field lines passing through given area. So current density also gives idea about the, we can say, the amount of current. What do you mean by current density? It is simply the amount of current passing through, we can say that, unit cross section area, or passing per unit, we can say, per unit cross sectional area. You can see that amount of current passing per unit cross sectional area. But one condition we have to satisfy: amount of current passing through, we can say that, unit cross sectional area. But this current, you can see that, must be, we can say that, current must be perpendicular to, we can say that, cross sectional area. So what do you mean by current density? Current density is equal to amount of current passing per unit cross sectional area, But what is the most likely point? Passing per unit cross section area
and perpendicular to it. Perpendicular to it, that means perpendicular to area of a cross section or cross section area, most IMP. So this is the most IMP formula. So current density is denoted by J. So current density J is equal to simply amount of current is I and cross section area is A. So this is the most IMP formula of this lecture, I can say. Very IMP. Current density J is equal to I by A. Most IMP. But we'll think about some, we can say that detail points, or we'll consider some detailed study about current density. So what is the basic point about current density? Current density, that means the current passing, amount of current passing per unit cross section area. But what is the condition? Amount of current passing per unit cross section area and perpendicular to that cross section area. Keep in mind here, current must be perpendicular, or current, we can say that always perpendicular to passing cross section area, or cross section area through it is already passed. So current and area should be required perpendicular to each other. So this is the most IMP point. If this condition is not satisfied, then what happens? We'll discuss turn by turn. But don't forget, this is the general equation of current density. J is equal to I by A. So it leads towards, we can say that, like electric flux. इसके जैसा ही, मगर किस तरह देखते हैं जरा, मैं थोड़ा डिटेल स्टडी शुरू करता हूँ. So be alert. Okay, current density. Then we have to think about two cases. First of all, case number 1. Current density for, we can say that, regular cross sectional area. What do you mean by regular cross section area? So ideal example just in front of you. This is regular cross section area. So if you think about this area, you can see this is cross section area. It is the regular cross section area. How can you identify regular cross section area? Very easy. Suppose there are 5 charges, Q1 to Q5. Now you can see current passing through this wire. This is I amount of current. And now you have idea current, that means simply the flow of charge. So चार्ज पासिंग थ्रू दिस वायर, इस वायर में से करंट पास हो रहा है, मतलब ये वायर में से चार्ज पास हो रहा है. अपन लोग 5 चार्जेस को कंसीडर करते हैं, Q1 टू Q5. अब Q1 और Q5, Q2, Q3, Q4 सभी के सभी एक ही टाइम पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे आएंगे और सभी के सभी इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पास करेंगे एक ही टाइम पे. क्यों? क्योंकि ये रेगुलर है, मतलब ये कंडीशन है. देखो पांचों 5 की दूरी ये पोजीशन से सेम है. सो ऑब्वियसली Q1 and Q5 all charges we can say that available at this cross section at the same time. What do you mean by this word same time? That means the same amount of charge I can say passing through each and every point. इसमें से चार्ज पास होगा, इसमें से भी चार्ज पास होगा, सेम चार्ज पास हो रहा है. दैट मींस जिसे कह सकते हैं कि कभी कोई आगे पीछे नहीं रहता है, सभी के सभी एक साथ इसमें से पास होगा. मतलब ये रेगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसी के कारण अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन सेम. सो दैट मींस आई कैन से द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन सेम. तो ये जो रेगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट है वो यूनिफॉर्म रहता है. सो आई कैन से दैट यूनिफॉर्म करंट simply passing through this cross section. And how can you decide the condition? Current passing per unit cross section area. I would like to define current density. So current density, that means current upon area. Current density, that means current upon area. Current already I. Area of cross section of this region suppose A. तो I by A हो गया? नहीं. करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जज करने से पहले उसकी डेफिनेशन को देखो. करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, बट current must be perpendicular to cross section area. So here you can see that how can you decide current and area both are perpendicular to each other. For that we have to think about area vector. चलो ये जो क्रॉस सेक्शन है ये मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो इसका एरिया अपन लोग जानते हैं A है, वेक्टर है. What is the direction of area vector representing the area of this cross section? You know that very well. Area vector always perpendicular to given surface. So this is your area vector A. And check the direction of current. This is, you can see that current, if you represent here,
this is you can see current I. So here current and area both are in same direction. So from today, whenever you are dealing with current density, then you have to check two quantities, current and number two area. If current and area vector, don't forget, don't consider area vector representing the area of cross section, both are in same direction, then no problem at all. कोई बोले इसमें no problem क्या? Yes, listen carefully. Whenever current and area vector both are in same direction, that means current remains perpendicular to given cross section area. क्योंकि जरा देखो, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ओके, इसका एरिया ये है, तो इसका एरिया मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ ये पेन से. So area of cross section always perpendicular to given surface. Okay, and what is the direction of current? This is the direction of current, you can see that. So both already in same direction. मगर area of cross section ऐसा होता तो, so what is the direction of area vector? Area vector, that means this red color pen, this is area vector, this is the area vector. And what's the direction of current? This is the direction of current. So you can see that here current doesn't remain perpendicular to area of this cross section. तो एरिया करंट को परपेंडिकुलर है कि नहीं वो तय करने के लिए हमें बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन देगा कौन? वो है एरिया वेक्टर. कोई भी क्रॉस सेक्शन का सबसे पहले एरिया वेक्टर तय करो. अगर एरिया वेक्टर, यू कैन सी दैट ये सरफेस के लिए, ये अपना ये सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सो करंट एंड एरिया वेक्टर ऑफ गिवन क्रॉस सेक्शन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. दैट मींस you can see current remains perpendicular to this given surface, like here are current I, and it remains perpendicular to this surface because area vector and current both are in same direction. So keep in mind, how can you decide the condition of current density is already satisfied? That means current and area both are perpendicular to each other or not. We can decide by using this method. हाथ से आपको यही याद रखना है, करंट और एरिया वेक्टर ऑफ गिवन क्रॉस सेक्शन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दैट मींस करंट रिमेंस परपेंडिकुलर. उसके पीछे का रास्ता दिख ही रहा है. अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन ना हो, इधर तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, सो नो डाउट आई बाय ए. बट इफ यू कंसीडर, वी कैन से सम अदर पॉसिबिलिटी, दैट मींस इफ नॉट रेगुलर क्रॉस सेक्शन, सो फॉर irregular cross section area, for example, now we draw the next diagram. This is your, we can say that conducting wire, and this is the cross section area, you can see. अब देखो यहाँ का चार्ज पहले पहुंच जाएगा, जबकि ये चार्ज तब यहीं पहुंचा है. मतलब करंट जब पास होगा तब ये क्रॉस सेक्शन एरिया में से यहाँ से चार्ज जब जल्दी पास हो जाएगा, यानी ज्यादा क्वांटिटी में पास होगा. यहाँ पे चार्ज पीछे रह गया, मतलब इस पॉइंट की कंपैरिजन में यहाँ पे चार्ज कम पास हो रहा है, मतलब करंट यूनिफॉर्म नहीं रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में, दैट मींस फॉर इरेगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया वी कांट राइट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन लाइक J इज इक्वल टू I बाय A. क्यों? क्योंकि इधर ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, दैट मींस करंट डेंसिटी ओके, बट करंट शुड बी रिमेन परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ द गिवन क्रॉस सेक्शन. तो इधर का सेट हो रहा है, देखो ये एरिया है, ये रहा, और ये करंट, तो इधर तो जिसे कह सकते हैं एंगल है वो थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़े? वी हैव टू थिंक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया वेक्टर, ड्रॉ एरिया वेक्टर. चलो ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ए डायरेक्शन में होगा, दिस इज एरिया वेक्टर ए, ready, and this is your current I. So there is some angle formed between these two I and I, so we can get two components of A. Number one, A cos theta, and number two, this is your A sin theta, you can see. So out of these two components, which component, बहुत ही चिकना केस, out of these two components of area, A cos theta and A sin theta, which component remains perpendicular to current? बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने के बाद सीधा आंसर देंगे A sin थीटा. इट इज रॉन्ग. कोई बोले क्या रॉन्ग? ये रहा A sin थीटा करंट को परपेंडिकुलर है. सॉरी, ये A sin थीटा एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर है. अपने को एरिया और करंट का परपेंडिकुलर सिस्टम चाहिए. मैंने कितनी बार बोला, एरिया वेक्टर अगर करंट की डायरेक्शन में हो तो ही एरिया और करंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर. इधर A sin थीटा इज नॉट एरिया, but it is the component of area vector.
representing we can say that the area of given cross section. थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ. ये जो ए साइन थीटा है वो एक्चुअली इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है. अगर मैं अच्छी तरह देखूँ तो ये जो क्रॉस सेक्शन उसके दो कंपाउंड्स मिलेंगे. एक ऐसा कंपाउंड्स मिलेगा और एक ऐसा, यानी कि एक ऐसा, देखो आपका सरफेस ऐसा है, इसके दो कंपाउंड्स मिलेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा. ये जो पोर्शन है उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा. यू कैन सी दिस इज द पोर्शन, उसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा ये साइन थीटा, और जो ये पोर्शन है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये डायरेक्शन में ये कोस थीटा. तो अब देखो ये कोस थीटा है वो करंट की डायरेक्शन में, जस्ट चेक इट. ये साइन थीटा इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, so that means a cos theta components of this area vector already we can say that perpendicular to we can say direction of current. वापस मैं जो बोल रहा हूँ शब्दों को बराबर पकड़ो. think about we can say that the proper wording, area vector and area, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. if area vector of this given area vector of given area is in the direction of current, that means ये करंट है और एरिया वेक्टर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो अपन लोग जानते हैं कि करंट एरिया को परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया. दैट्स द पॉइंट. बट हियर यू कैन सी दैट वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ एरिया वेक्टर. नंबर 1 ए cos थीटा एंड नंबर 2 ए sin थीटा. अब अपने पास एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर है. ये रहा एक एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ए cos थीटा, दूसरा ए sin थीटा. तो कौन सा कंपोनेंट एरिया वेक्टर का करंट की डायरेक्शन में, ए cos थीटा. मतलब ए cos थीटा है, इसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करें. ये जो पोर्शन है मैंने बताया इसके दो पोर्शन मिलेंगे अपने को. अच्छी तरह देखें दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा. ये जो कंपोनेंट है उसका एरिया वेक्टर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए cos थीटा. और ये जो कंपोनेंट है या ये एरिया का पोर्शन है उसका एरिया वेक्टर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए sin थीटा. और अब करंट ऐसे जा रहा है, देखो दिस इज योर करंट. अब चेक करो करंट किसको परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ये पोर्शन इसको परपेंडिकुलर नहीं, इसके साथ तो 90 डिग्री एंगल बनाना है. वापस ये sin थीटा के साथ जिसे कह सकते हैं 90 डिग्री एंगल बनाना है. परपेंडिकुलर एरिया के साथ होना है, एरिया वेक्टर के साथ नहीं. ये एरिया वेक्टर है, करंट यहाँ पे एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं. एरिया को परपेंडिकुलर करना हो तो एरिया वेक्टर और करंट की एक डायरेक्शन होनी चाहिए. तो इधर ए cos थीटा अपने को कंसीडर करना पड़े. सो इन दिस सिचुएशन द फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी करंट I, बट इंस्टेड ऑफ ए वी हैव टू कंसीडर ओनली ए cos थीटा, क्योंकि सिर्फ ए cos थीटा जो एरिया को रिप्रेजेंट करता होगा वही एरिया करंट को परपेंडिकुलर होगा, बाकी एरिया करंट को परपेंडिकुलर नहीं होगा. सो दिस इज द मोस्ट टाइम फॉर्मूला, J is equal to I upon A cos theta, और I can say this is the general equation. मैं तो इसको ही जनरल इक्वेशन कहता हूँ, मोस्ट IMP. सो विल राइट हियर धूम फॉर्मूला. ये बहुत ही चिकना केस है. व्हाट डू यू मीन बाय थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर A एंड करंट I. डोंट फॉरगेट आई एम यूजिंग वर्ड एरिया वेक्टर. बहुत ही चिकना ये पोर्शन है प्लीज. इधर काफी स्टूडेंट एरिया समझ रहे, डोंट थिंक अबाउट एरिया. एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया, यानी कि ये पॉइंट ऐसा हो इसका अपन लोग करंट डेंसिटी फाइंड करना चाहे तो इसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है, देखो तो ये आए हो गए, पहला पोर्शन आ गए, ये आ गए, यू कैन सी लाइक दिस है. और अब इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन में होगा. सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. मगर मैंने बताया कि अगर ऐसा पोर्शन होता है तो करंट भले डायरेक्शन में पास हो रहा है, करंट ऐसे पास हो रहा है, मगर इसका एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा. तो एरिया वेक्टर है वो जिसे कह सकते हैं कि करंट को परपेंडिकुलर है. तो कोई बोले यही तो चाहते हैं, सॉरी एरिया वेक्टर में बोल रहा हूँ, एरिया नहीं है. एरिया वेक्टर जिसे कह सकते हैं करंट को परपेंडिकुलर है, मतलब करंट एरिया को जिसे कह सकते हैं कि पैरेलल है. तो ये मोस्ट टाइम की पॉइंट है, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना रखना हो तो एक चीज याद रखने की, कभी भी करंट डेंसिटी के लिए एक ज गुरु मंत्र कि एरिया वेक्टर फाइंड करो. अगर गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो करंट की डायरेक्शन में हो तो नो प्रॉब्लम, एरिया करंट को परपेंडिकुलर है, अदरवाइज एरिया करंट को परपेंडिकुलर है नहीं. तो इधर अपन लोग ने जनरल फॉर्मूला है, ये थियोरेटिकली कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
इसमें से कुछ थियरी में नहीं आएगा, इसलिए एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू में, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में ये इक्वेशन सिर्फ दम लगाएगा एमसीक्यूज में और कुछ एडिशनल सपोर्ट में. सो नाउ व्हाट इज द जनरल इक्वेशन? यू कैन सी दिस इज योर जनरल इक्वेशन ऑफ करंट डेंसिटी. अब आप देखो, दिस इज योर थीटा, सॉरी थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया वेक्टर. अब ये जनरल इक्वेशन है, उसके ऊपर से कोई भी रेगुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो क्या होता है? रेगुलर क्रॉस सेक्शन. सो फॉर रेगुलर क्रॉस सेक्शन you know that very well, this is your regular cross section. ये करंट I and what is your area vector? एरिया A है, अगर इसको वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करो, एरिया वेक्टर. So what is the direction of area vector? Area vector always perpendicular to given surface. So area vector and current both are in same direction. So what is the theta? 0, because angle between area vector and current is theta. So इसमें 0 रख दो. So J is equal to I by A. This is your formula. तो दिस इज द वी कैन से द मोस्ट टाइम पे. सो करंट डेंसिटी का ए टू जेड डिस्कशन वापस करते हैं और कुछ पॉइंट्स और जिसे कह सकते हैं ऐड करते हैं. नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी? अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, एंड करंट वी कैन से दैट रिमेन्स परपेंडिकुलर टू एरिया. करंट पासिंग थ्रू एरिया. ओके, डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी. ओके, बट करंट रिमेन्स or current should be perpendicular to area of given cross section. Area of given cross section, ये important word है. Okay, what is the general formula? J is equal to I upon A cos theta. इसको याद रखो, where theta is the angle between area vector of the given cross section and current. मोस्ट टाइम पे अब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कौन सा डायरेक्शन, बस एक ज फॉर्मूला केस 5. सो मोस्ट टाइम पे सो अपन लोग इसमें थोड़ा और पॉइंट ऐड करते हैं. or we can say that current density. So current density का general equation with you, what is the unit? Unit obviously ampere per meter square, and current density for regular cross section I by A, you know that very well. Okay, sometimes current remains constant. For constant current, obviously J is inversely proportional to A. But for circular cross section, you can see circular cross section, what is the area of cross section? It is pi r square. So J is inversely proportional to the square of the radius of given cross section, A radius r. तो ये फॉर्मूला भी मोस्ट टाइम थी. So don't forget, J is equal to I by A, general equation I upon A cos theta. J is inversely proportional to the square of radius. Sometimes you can see that if you consider very small area, suppose मैं अभी एक और डिटेल स्टडी करवाता हूँ, ये पूरा ने इतना एरिया लेते हैं जिसका एरिया ds है सपोज. तो ऐसी सिचुएशन में करंट डेंसिटी J कैन आल्सो बी वी कैन से ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. देखो I is equal to, करंट फाइंड करना हो, इसमें से कितना करंट पास होता है, टोटल करंट I होता है, इतने पोर्शन में से क्या करंट पास होता है, di. सो करंट di is equal to J into ये ds है, सो J into ds. अगर इंटीग्रेशन लो, सो I J ds, और cos थीटा हो तो अपन लोग इधर डॉट लिख सकते हैं और इधर s. ये मैं जनरल इक्वेशन दे रहा हूँ, डोंट वरी. दिस इज वी कैन से दैट इफ एरिया इज वेरी स्मॉल, then how can you find current passing through this small area? By taking, we can say that J dot ds, or J dot ds, और s का मतलब है surface integration over the given surface. Don't worry about it. Important points इतने ही है, बस ये याद रखना है, ये ज़्यादातर जरूरत पड़ेगी नहीं. तो मुझे करंट डेंसिटी का चकाचक सिस्टम चाहिए. जनरल फॉर्मूला I अपॉन A cos थीटा. करंट का करंट डेंसिटी का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया, बट करंट must be perpendicular to area of cross section. Unit ampere per meter square. And if you think about the current density and radius, then current density is inversely proportional to the square of radius. इतने पोर्शन के बाद अपन लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन करंट डेंसिटी. देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, इसमें से एक भी क्वेश्चन है वो क्रिटिकल नहीं है, डोंट वरी. ओनली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो करंट डेंसिटी अपन लोगों को ये बता रहा है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें से कितना करंट पास हो रहा है. ओके, क्वेश्चन से शुरू करते हैं. सो आईएमपी क्वेश्चन, सपोज दिस टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन एंड दिस इज, यू कैन सी दैट करंट, ऐसा क्रॉस सेक्शन दिया है आपको.
this is area of cross section A, and this is the direction of current. Current suppose 2, we can say that ampere, and area of cross section 1 centimeter square. What is the area of cross section? 1 centimeter square. Current 2 ampere, and this angle given 60 degree. Okay, then find the current density. Think about it. So very IMP current density, काफी स्टूडेंट्स को पॉइंट हो सकता है. So current density J is equal to I upon A cos theta. Most IMP I upon A cos theta. ये बहुत ही चिकना केस है फ्रेंड्स. कोई बोले कहाँ चिकना है, रखो वैल्यू सीधा. तो चलो आप बोलते तो रखते वैल्यू 2. एरिया लेते 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मींस 10⁻⁴. थीटा already 60, and if you simplify then you will get answer. This is your, we can say that, wrong assumption. Don't forget, this is your wrong answer because मैंने बोला है चिकना कैसे थीटा. थीटा, what do you mean by theta? Theta is the angle between current and area vector. So where is your area vector? If you represent area vector of this area, so area vector always perpendicular to the given surface. This is your area vector, you can see. So area vector, and this is your current. So you have to consider this angle theta. So obviously this is total 90 degree. Out of 90 degree, this angle 60 degree. So what is this considered angle? 30 degree. Now you understand the game. This is 60 degree. This is your area vector. Your target to find this. This is total 90 degree. Out of 90, 60. So obviously 30. So here instead of 60 degree, you have to consider 30. So 2 upon 10⁻⁴ cos 30 √3/2. So obviously 4/√3 into 10⁻⁴ ampere per meter square. That's your, we can say that, answer. Marvelous. तो ये बहुत ही important question, ऐसे question पूछ सकते हैं. थोड़ा चिकना केस है, इसलिए जरा ध्यान रखने का. So friends, current density very important topic. We have discussed about current density A to Z. Now we will move towards the next point. The next theory very IMP. मैंने बोला अभी ये चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग जोन है वो शुरू हो चुका है. So be alert. First of all, we would like to obtain the first most IMP theory for 2021. A damn sure theory. Obtain relationship between obtain a vector form of, there is a mistake, but obtain vector form of Ohm's law. Most IMP. ये समझ लो 2 मार्क्स का डैम श्योर क्वेश्चन बन सकता है. So very important point. So once again, vector form, but you have already idea about the Ohm's law. So we would like to derive vector form of Ohm's law. Ohm's law, you know that. So just concentration required. Suppose there is a conducting wire. Let the length of this wire is L, area of cross section A, and there is a battery of potential V is connected like in this way. So obviously for this type of connection, you know that very well. If a circuit is completed, so current start its journey always from positive pole of the battery. ये current निकला, हम लोग जानते हैं always goggles पहन के, and whatever the, we can say that current passing through this wire, it is already I. Whenever battery is connected, अब जो point most time पे, keep in mind, whenever battery is connected across these 2 ends of wire, then inside this wire supreme quantity, we can say that it exists. Anybody? Whenever this type of battery is connected, then a special type of quantity is produced across this wire or inside this wire. Sorry, it is, you know that very well, electric field. So electric field is produced, and this is, you can see the direction of electric field. Why? What is the reason? Because electric field always from positive point towards the negative pole. So positive. So this end at
end is connected to positive pole of the battery. So this end at positive potential, while opposite end is connected with negative terminal. So this opposite end at negative potential. So electric field always from positive to negative. So electric field also existing inside this wire because of the battery. So what happened here in front of you, whatever the diagram is shown, here a wire of length L, current passing through this wire is I, and electric field E is existing inside this wire of cross section area A. Now we would like to think about Ohm's law. तो वहां से शुरू करते हैं, या फिर आपको ऐसा ना याद हो तो अपन लोग लिखते हैं वी नो दैट, बिंदास लिखने का वी नो दैट, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स है वो पूछना जानते हो तो भी लिखते हैं वी नो दैट, क्या जानते हो तो उसको बता, फिर भी वी नो दैट रेजिस्टेंस R is equal to rho L by, you know that R is equal to rho L by A, but R is equal to, as per Ohm's law, now you can see that Ohm's law, as per Ohm's law, R is equal to V by I. So instead of R, now I can write V by I. V by I is equal to rho L upon A. Okay, V. What do you mean by V? V is the potential difference across these 2 points. So we have idea about this point. Now we know that again electric field V upon D. So V is equal to any potential difference across these 2 points. It is E into D. In our case, D is the distance between these 2 points. Potential difference 2 points के बीच में उसकी दूरी कितनी L. So here instead of D we will consider EL. Use EL here. So E into L upon current I is equal to rho into L upon A. अलविदा दोस्तों. So now you know that very well. I can write this equation like in this way. E by rho is equal to I by A. याद करो I by A. I by A, that means current density. What do you mean by rho? We can also write this equation 1 upon rho is equal to J. Reason I by A is equal to current density J. अब देखो 1 by rho, last lecture, reciprocal of resistance, it is called conductance. Reciprocal of resistivity, it is called conductivity. So here you can see 1 upon rho resistivity का reciprocal, it is conductivity J. So I can write J is equal to sigma E, J vector, E vector. This is the most IMP formula. This equation is called J is equal to sigma E. It is called simply the vector form of Ohm's law. And it is equivalent to, we can say that R is equal to V by I, that means V is equal to IR. Don't forget, most IMP point, very very important. ये 2 मार्क्स में पूछेंगे जो, और इसमें पूछ नहीं है, आप देख सकते हो एक इक्वेशन में R is equal to V by I, V is equal to EL because of electric field multiplied by length and little bit mathematical movement, I by A J, 1 upon rho sigma. Sigma is the conductivity. So this is the marvelous equation we will use in future also. Current density J is equal to sigma E. So most IMP point. So friends, you can see the most important equation we have derived for 2 marks. Theoretically तो strong है ही ये portion, मगर इसका जो आंसर है वो भी फ्यूचर में यूज होने वाला है. So most important, just consider it. Very IMP. Okay, ready? Now we think about the next point. Next point very important. अब सभी बंदों को गिनती है सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि ये टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. So most IMP topic now we would like to discuss. Okay, drift velocity. Drift velocity topic है वो theoretically interesting, मगर इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बेस बना रहा है, एक जबरदस्त थियरी को जो आज अपन लोग कवर करने वाले हैं, जो डैम श्योर 3 मार्क्स में आ सके ऐसी थियरी. तो फ्रेंड्स नाउ बी अलर्ट.
Drift velocity, most IMP topic, drift velocity. Okay, this drift velocity, what do you mean by drift velocity? To understand this entire, we can say the process or this word, we have to think about standard 10th. बोले 10th standard, yes 10th standard में ये टॉपिक एक बार आ चुका है, just check it. There is a conducting wire, you can consider metal. मेटल का स्ट्रक्चर आप जानते हो, पहले मैं मेटल का डिस्कस कर लेते हैं. What happen about we can say the structure of metal, you know that very well. What are the constituent particles of the metal? Two particles, number one free electrons and number two positive ions. But you know that very well, free electrons are light particles, so free electrons experience force, free electrons perform motion, but positive ions are heavy particles and they are situated at particular point. This point or points are called lattice point, you know that very well. So here this is the conducting wire like copper wire, इसमें से current pass करना है. But at present time we will discuss the first case. Suppose this conducting wire is not connected with any battery, that means there is no electric field, no electric field is present. So we will discuss the first case in absence of electric field, there is no electric field inside the wire. Then what happens inside the wire? You know that very well, inside this conducting wire there are innumerable electrons. If you think about this density, then only 10 raised to 28 number of electrons per meter cube. सिर्फ इतने electrons होंगे. जरा चेक करना, per meter cube 10 raised to 28 electrons are present inside this wire. And what happens with these electrons? These electrons are not, we can say that like you. That means they, we can say they sit very easily and very cool and calm. No, these all electrons are very, we can say that mischievous, or I can say that unstable, because they all are performing random motion. God is great. मैं बोले इसमें God is great कहाँ से आया? अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा. ये जो random motion word है वो God is great के लिए मैं बोल रहा हूँ. These all electrons are performing random motion. Random, that means here and there, like in this way you can see. ये इस साइड जाता होगा, इस साइड, you know that this is random motion. But this random motion performed by this electron with only speed of 10 raised to 5 meter per, we can say that second, with this speed, only this speed. एक सेकंड में 10 raised to 5 मीटर डिस्टेंस की ट्रैवल करता, मतलब इतनी स्पीड से ये मोशन कर रहे हैं. ये स्पीड आप भी समझ सकते हो, कोई जैसे तैसी स्पीड नहीं है. एक तो जिसे कह सकते हैं कि जबरदस्त रैंडम मोशन, और स्पीड भी जबरदस्त, यानी कुछ पता नहीं चल रहा होगा कौन कहाँ जा रहा है. मगर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसी मोशन कर क्यों रहे हैं? They required, we know that very well, some energy, certain type of energy available, then and then they perform this type of motion, and there is no electric field at all. अपन लोग तो एक्सटर्नल भी कुछ नहीं दे रहे. So this all electrons perform motion with thermal energy. Because of thermal energy, because of outer temperature, they possess some thermal energy. Because of thermal energy, each and every electron has thermal velocity. Let first, if you consider first electron, there are n number of electrons. Suppose the first electron has u1 thermal velocity, Suppose second electron has u2. Suppose nth number of electron has un thermal velocity. With this thermal velocities, these electrons perform random motion. अब क्या होगा? If you consider, we can say that any cross section, ये क्रॉस सेक्शन वाले देखो, अब अपन लोग एक सेकंड का टाइम ड्यूरेशन लेते हैं. इन 1 सेकंड सपोज 1000 number of electrons are passing from left to right. How many number of electrons? Suppose 1000 electrons are moving from left to right, or I can say that through this cross section 1000 electrons will move from left to right. But these all electrons perform random motion. That means the same number, suppose 1000 number of electrons are also moving from right to left side. So tell me, what is the average number of electrons passing through this considered cross section? Obviously 0. And what is the average thermal velocity? So average thermal velocity of these all electrons, so I can write it is u is equal to u1 plus u2 plus dash un upon capital N number of electrons. Suppose
So you can see, suppose here capital N. So capital N number of electrons, so divide by capital. So what is the average thermal velocity? तो देखो मैं इधर इसका भी सीन बता रहा हूँ. एक्चुअली क्या होता होगा, ए क्रॉस सेक्शन के लिए ए इलेक्ट्रॉन इस साइड जाता होगा, ए इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड जाता होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस साइड. ये सभी की थर्मल वेलोसिटी लाइक u1 u2 u3 u4 इस तरह जिसे कह सकते हैं कि रैंडम मोशन बनती इधर, इसके कारण 5 वेलोसिटी इस साइड होगी तो 5 वेलोसिटी इस साइड होगी, यानी एवरेज वेलोसिटी एक दूसरे की इफेक्ट नलिफाई करे. सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, डोंट फॉरगेट. यानी देखा जाए तो इस क्रॉस सेक्शन में से एवरेज वेलोसिटी 0, मतलब अपन लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि कोई चार्ज पास हो ही नहीं रहा है. अगर कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से पास ही ना हो तो ये क्रॉस सेक्शन में से करंट कितना पास हुआ? 0. इसीलिए फ्रेंड्स कि मेटेलिक मटेरियल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना किया हो तो ये मेटेलिक मटेरियल सिंपल मटेरियल और मेटल के तौर पे काम करता है. ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके मुताबिक करंट को फ्लो नहीं करवाएगा. क्यों? क्योंकि अपन लोग ने देखा the average number of electron passing through any cross section of the conductor is 0. और उसके पीछे भी एक मैं वर्ड यूज करूं, क्यों? तो क्यों क्या आंसर आएगा? रैंडम मोशन. गॉड इज ग्रेट. क्यों गॉड इज ग्रेट? सपोज दिस डस्टर इज मेड अप बाय सपोज आयरन और कॉपर, देन if there is no random motion, then what happen with this point? Then obviously some current passing through this wire, even absence of electric field at all. इसके साथ में बैटरी कनेक्ट करूं तो करंट पास होता है, मगर ये मेटेलिक वायर में से अगर अपन लोग ये रैंडम मोशन हटा ले और सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में जाते होते तो कुछ करंट बनता, और करंट बनता तो अपन लोग ये मेटल का फ्रीक्वेंट यूज कर नहीं पाते. तो ये जबरदस्त, क्योंकि अपन लोग कहाँ ना कहाँ मेटल के कांटेक्ट में आ ही जाते हैं. और ऐसे देखो आप, एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट यही बनता है कि कुछ लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर इफ यू वी कैन से थिंक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ करंट, व्हाट्स द रीजन करंट इज फॉर्म? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज. तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर ही रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन कर ही रहे. अगर ये मेटल का है, डोंट फॉरगेट, तो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हो तो करंट बनना चाहिए. करंट बनना चाहिए तो ये अपन लोग टच ही ना कर पाए, इसको छोड़ देना पड़े. मगर अपन लोग जानते हैं इसका बिंदास अपन लोग यूज कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज द एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम 0. व्हाई? because of the random motion of this electron with a tremendous speed like 10 raised to 5 meter per second due to thermal energy. So friends, this is the first point. What we have discussed, the average number of electrons passing through any cross section of the conductor is 0, or average thermal velocity always 0. But in which condition? For this condition, no electric field is applied. Now we would like to think about the application of electric field. Now what happens if electric field is applied? So now check it. As concentration required, you know that very well. What is the thermal velocity? Average thermal velocity here 0. Don't forget, average thermal velocity 0. Now same scenario, यानी कि यही कहानी मगर थोड़ी अलग जुबानी देखते हैं. यानी कि in the presence of electric field, so we write in presence of electric field or whenever electric field is applied. So just concentration required. Once again the same metallic wire. Once again it is connected. Sorry, it is connected with, we can say, the potential of battery V, and the length of wire is L. Obviously if you connect, then obviously current will pass. तो current pass होने लगा, वो क्यों होता है वो जरा डिस्कस करने वाले हैं. Now you can see electric field is already present here. Why? Because if you think about the connection, so this end number 1 is already in contact with positive pole of the battery. So I can say end 1 already at positive potential, and this end 2 is already in contact with negative pole of the battery. So end 2 at negative potential. So positive potential, positive, negative. So obviously electric field already here existing, and this is the direction of electric field. You can see from positive to negative. So now electric field is present. Why electric field is present? Because of this connection of battery. पहले के केस में बैटरी नहीं थी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई वजूद नहीं था. मगर अब अपन लोग देख सकते हैं कि बैटरी के कारण ये वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी क्या धुन मचाएगा वो जरा देखते हैं. सबसे पहले अपन लोग को एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं. ये रहा इलेक्ट्रॉन.
तो मैं इधर जिसे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट, देखो ये नाउ दिस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी inside the electric field or not. Here electric field in this region, you can see electric field already existing. So this electron already inside the electric field. Now you know that chapter number 1, any charged particle inside electric field, then it experience some force. So this electron experience some force. So what is the force acting? Force acting on electron due to electric field E. So what is the formula of this force? F is equal to QE. You know that very well. F is equal to QE. Ready? But here I can write EE. Ready? And because of this force, it is one of the, we can say that the general point. If you apply force, then there is acceleration. So acceleration gained by this electron, acceleration A is equal to, you know that, F upon M. Because father F is equal to mother ma. So A is equal to F by M. So F is equal to EE upon M. But if you write only magnitude form, so this is your acceleration. मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इतना एक्सीलरेशन मिलेगा. ओके, काफी टाइम पे कुछ सर इधर माइनस साइन भी रखते हैं, मगर अपने को इधर माइनस साइन है क्योंकि दिख ही रहा है. क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है. और अपन लोग जानते हैं जब भी फोर्स लगे, force acting on positively charged particle, then force always in the direction of electric field. But force acting on negatively charged particle, minus sign के कारण, we can say that both are in opposite. Here we are discussing about electron, so obviously whatever the force acting, this force acting on electron, it is in opposite direction of electric field. So this is your electric field. So what is your force? This is the direction of force. और ये force के तहत ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ये डायरेक्शन में है और ये आपका फोर्स. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स व्हाट हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन परफॉर्म्स एक्सीलरेटेड मोशन. बट दिस एक्सीलरेटेड मोशन फ्रेंड्स, सिंपली आई कैन यूज ओनली वन वर्ड. दिस एक्सीलरेटेड मोशन इज अ मोमेंटरी मोशन. मोमेंटरी यानी ओनली फॉर, वी कैन से द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. कोई बोले ऐसा क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है. We discuss, you know that very well, just delta t time ago. There are 10 raised to 28 electrons. Plus, if you think about the structure of metal, then there are lots of positive ions. अब ये इलेक्ट्रॉन मैं कहूँ तो पॉजिटिव आयंस के जंगल में से पास हो रहा है. जरा देखो स्ट्रक्चर. तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये सब पॉजिटिव आयंस है. दिस ऑल पॉजिटिव आयंस performing, you know that very well, oscillatory motion about their mean position. ऐसे मोशन करते होंगे और इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होकर निकले. मगर ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सीलरेटेड मोशन शुरू करे, कहाँ ना कहाँ धार, दैट मींस कहाँ ना कहाँ कोलाइड होता जाएगा. फॉर एग्जांपल इधर ये जर्नी देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, अब फोर्स इससे लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है. पता चला क्यों इस साइड जा रहा है? क्योंकि फोर्स ये डायरेक्शन में. तो जैसे ही वो जूम से आगे बढ़ेगा, देखो जूम से आगे बढ़ा और अभी तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इधर कोई पॉजिटिव आयन होगा, उसके साथ धार से स्ट्राइक होगा. सो कोलाइजन occur here. You can see that this electron get collides with the positive ion, and once collision is occurred, whenever collision is occurred, then what happen? Whatever the acceleration associated with electron, it becomes zero. So you can see I have used one word. This accelerated motion of electron is a momentary. Why? Momentary यानी कुछ मोमेंट तक ही रहेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन जूम से इधर आएगा, इधर कोलाइड हुआ, इधर एक्सीलरेशन बन गया जीरो. अब इलेक्ट्रॉन की वापस नई जर्नी शुरू होगी. तो देखो इलेक्ट्रॉन है वो वापस ये डायरेक्शन में जाए. कोई बोले डायरेक्शन क्यों चेंज कर दी? कोलाइजन होने पे एक तो होगा एक्सीलरेशन जीरो और दूसरा उसका जो डायरेक्शन ऑफ पाथ वो चेंज हो जाएगा, वो कोई दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन अब अपना जर्नी शुरू करेगा. उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी क्या? थर्मल वेलोसिटी. कोई बोले वो कहाँ से है? अरे ये आजू बाजू टेम्परेचर तो है ही, तो इस लोगों के पास थर्मल एनर्जी तो है ही. सो थर्मल वेलोसिटी के साथ मोशन शुरू करे. व्हाट इज द थर्मल वेलोसिटी? इट इज यू. यू नो दैट वेरी वेल, वेक्टर यू. याद करो थोड़ी देर पहले का टाइम. सपोज ये इलेक्ट्रॉन, अपन लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. सो व्हाटएवर द वी कैन से दैट इट्स थर्मल वेलोसिटी, इट इज u1.
ये u1 वेलोसिटी के साथ ये बंदा मोशन शुरू करे, दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मगर ये थोड़ी देर में दैट मींस जैसे ही मोशन ये वेलोसिटी के साथ शुरू करे, मगर ये तो किसके अंदर है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सब जगह, ये यही कहानी चल रही है, बाहर नहीं है, डोंट फॉरगेट। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वंस अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस सम फोर्स, बिकॉज ऑफ फोर्स वंस अगेन स्टार्ट एक्सीलरेटेड मोशन। तो देखो वापस निकला, जूम से इधर आएगा और इधर वापस बोला है, मगर ये वापस ये जो एक्सीलरेटेड मोशन होगा वो भी क्या होगा, मोमेंटरी, क्योंकि इधर वापस कोलाइजन हो गया वापस ये डायरेक्शन में। तो अपन लोग देखें इस तरह ये कोलाइजन होता होता यानी कि गिरता पड़ता वापस खड़े होकर आगे बढ़ता, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। मगर अपना पोर्शन ये है, ये देखो ये पोर्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है उसका मैंने एक पोर्शन बताया, उसमें इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, और इसका जिसे कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है, a बार, ये ना एक वेक्टर है सॉरी a, एंड ये जो ड्यूरेशन है टाइम ड्यूरेशन वो t1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में t1 टाइम लगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन नंबर 1? So velocity of first electron, it is given by this equation, v1 is equal to initial velocity u1 plus acceleration a into time t1। याद आया ये फॉर्मूला, v is equal to v0 plus at। so this is your velocity, or I can say that velocity of first electron, इतनी वेलोसिटी होगी। मगर मैंने बोला ये वेलोसिटी थोड़ी देर मोमेंटरी, वापस यहाँ से वापस v1 इस तरह आगे आएगा, इस तरह जिसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ये तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर हमने देखा ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन आई कैन राइट v2 is equal to u2 plus at2। इसी तरह nth इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, vn is equal to un plus a into tn। you can see this all are formulae for velocities, okay, velocities gained by this electron because of you know that very well force or accelerated during accelerated motion। तो ये सब वेलोसिटी है, मगर ये तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की है, तो अपने को ये सभी की एवरेज वेलोसिटी निकाले, तो वो एवरेज वर्ड अपने को ले जाएगा। इफ यू फाइंड एवरेज ऑफ दिस ऑल वेलोसिटी, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों और कैसे डिस्कस करते हैं, मगर पहले अपन लोग ये डिस्कशन वापस शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने बोला है जोरदार पॉइंट है। सबसे पहले बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब अपन लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है उसको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था। ये ऐसा ही सिनेरियो जैसे क्लासरूम, कोई सर नहीं होता है तो बिंदास बिंदे सीधे कह सकते हैं कि बिंदास बंदे इधर उधर बातें करते हैं, तो ये सब डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, रैंडम। मगर कोई सर की जैसे एंट्री होती है तो सभी एक ही डायरेक्शन बोर्ड की तरफ आ जाते हैं। इसी तरह ये सर है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की एंट्री हुई सभी इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहां पे, नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव। और इसी के कारण देखो आप दिमाग बराबर दौड़ाओ, यही क्रॉस सेक्शन है जिसमें थोड़ी देर पहले एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो थे बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बैटरी। नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बैटरी एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट यानी कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एवरेज नंबर अब इस क्रॉस सेक्शन का जीरो नहीं होगा, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं मतलब करंट फॉर्म हो रहा है या फॉर्मेशन ऑफ करंट। तो ये कहानी है करंट के पीछे और बैटरी का कंसेप्ट। ओके, इधर बैटरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, और ये फोर्स की डायरेक्शन भी हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन है इसलिए नेगेटिव चार्ज, तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिशन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, फोर्स इस तरह लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड मोशन करेगा। ये देखो हमने मोशन शुरू की, जैसे फोर्स लगेगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड मोशन शुरू करेगा, इसका एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर लिया E बाय m। ये एक्सीलरेशन के साथ जैसे शुरू करे, अगर मैंने बोला ये एक्सीलरेशन होगा मोमेंटरी, क्योंकि थोड़ी देर में धाड़ से आवाज आएगी, इसे याद रखने के लिए, ऐसे आवाज नहीं, और वो आवाज किसकी होगी, कोलाइजन, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन धूम से जिसे कह सकते हैं कि इधर टकराएगा किसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ। फिर यहाँ जब कोलाइजन हो तब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला है मोमेंटरी एक्सीलरेशन। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस जर्नी शुरू करेगा, इसलिए मैंने बोला इलेक्ट्रॉन गिरता है, वापस खड़ा होता है, धीरे धीरे इस तरह आगे बढ़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी फ्रेश जर्नी शुरू करेगा। इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी कौन सी,
U1 देखो U1 क्यों U1, ये थर्मल वेलोसिटी गेन करके, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वापस इलेक्ट्रिक फोर्स, वापस फोर्स के कारण एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेटेड होने के कारण उसको जो वेलोसिटी मिल रही है वो है v1. सो v1 इज द वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस एक्सीलरेटेड मोशन. v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1. u1 इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t1 इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस जर्नी. इसी तरह सेकंड इलेक्ट्रॉन की ऐसी कहानी देखो तो u2 प्लस at2. इसी तरह nth इलेक्ट्रॉन की कहानी देखो तो un प्लस atn. अब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है, there are lots of number of electrons. If you find average of this all velocities, देखो मैं बोल रहा हूँ average of all velocities of electrons, average of all velocities of electrons drifted, ये देखो इस ड्रिफ्ट करते करते जा रहे हैं, याद है टोक्यो ड्रिफ्ट, यू नो दैट वेरी वेल. जिसको पता चल गया होगा टोक्यो ड्रिफ्ट फास्ट एंड फ्यूरियस पॉइंट ऑफ व्यू में एक पिक्चर का पार्ट है टोक्यो ड्रिफ्ट, आई थिंक 5th और 6th, नो आइडिया. सो ड्रिफ्ट, यू नो दैट, काफी लोग ड्रिफ्ट लगाते गाड़ियों में, तो ये ऐसे ड्रिफ्ट होता होता आगे बढ़ता है. सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. The average velocity of all electrons drifted towards positive end under the effect of electric field. This average is called drift velocity. Once again, average velocity of all electrons drifted towards the positive end under the effect of electric field is called drift velocity. तो अपन लोग ये सभी वेलोसिटीज का एवरेज लेने जा रहे हैं. पता चला ये सब क्या हो रहा था. अब जिसे कह सकते हैं अपन लोग इसका एवरेज ले. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट मींस एवरेज वेलोसिटी. चलो इसका एवरेज लेते हैं. एवरेज यानी v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो एवरेज वेलोसिटी दैट मींस नाउ आई कैन राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी as per definition. It is denoted by vdd for drift velocity. चलो v1 का फॉर्मूला है u1 प्लस at1 प्लस v2 का फॉर्मूला है u2 प्लस at2. अब ये फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो तो बटा 7 की घटा. चलो सो नेक्स्ट प्लस डैश 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 vn. सो इट इज un प्लस atn अपॉन कैपिटल N. अब अपन लोग देखो थोड़ा ये पोर्शन देखते हैं. u1 से लेकर u2 से लेकर un को सिलेक्ट कर ले तो ऐसा इक्वेशन बनेगा. आई कैन राइट u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un डिवाइड बाय n प्लस a प्लस, देखो a प्लस. अब सेकंड टर्म लेते हैं. सेकंड टर्म कौन सा, at1 at2 atn. सो at1 प्लस at2 प्लस डैश 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 atn, ऐसा होगा. पहले फर्स्ट टर्म का एडिशन करके डिवाइड बाय किया, सेकंड टर्म का एडिशन डिवाइड बाय कैपिटल N. अगर इसमें से कॉमन क्या है, यू कैन सी a कॉमन. सो अपन लोग a को सीधा कॉमन निकाल ले. सो हियर t1 प्लस t2 डैश 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 tn. ओके, अभी इसको याद करो. याद दस थोड़ी देखो. ये पोर्शन शुरुआत में देखा था. whenever battery is not connected in absence of electric field, this is the average thermal velocity. What is the average thermal velocity in absence of field? 0. So obviously this term becomes 0. So what is the final formula of drift velocity? Vd is equal to a bar, and this is, you can see that t1 plus t2 plus tn upon n. This is your, we can say that average time. Ready? And this is magnitude form, so I will remove vector. इधर भी हमने magnitude form लिखा. So Vd is equal to a t average. T average, you can see Vd is equal. But what is the formula of acceleration? It is E by m. इधर थोड़ी देर पहले लिखा था. And t average, this t average, this is the most time point. This average time. Okay, देखो इधर हमने एक इलेक्ट्रॉन था, इधर पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइजन, फिर कोलाइजन. तो ये जो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच का जो टाइम है वो हमने t1 लिया था. देखो ऐसा ये टाइम का अपन लोग एवरेज ले तो उसको कहते हैं, ये लिया ना हमने एवरेज, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. सो व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम?
So average time duration between two successive collision, the average time duration between two successive collision of electrons and ions, okay, is called simply relaxation time. So this average time between two successive collision of electron and positive ions, it is called relaxation time. तो इसकी जगह मैं कर देता हूँ tau. So tau is the relaxation time. This T average, it is called relaxation time, and it is denoted by tau. So this is your most IMP formula. So धूम formula इसको मैं tau कर देता हूँ. This is the formula of drift velocity. तो आज से आपके घर में जहां पे भी करंट कैरिंग वायर है, उसमें से जब भी करंट पास हो रहा हो तो तब इलेक्ट्रॉन अंदर से पास होते होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी के साथ जाते होंगे. याद रखना, आज से मैं बोलूं करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर, दैट मींस इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दैट वायर विथ वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कोई भी करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ये वेलोसिटी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन यही वेलोसिटी पोजेस करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Its formula E tau upon m. What do you mean by tau? Relaxation time. It is the average time duration between two successive collision of electrons with positive ions. Don't forget its value 10 raised to minus 14 second. Only minus 14. यानी ये वर्ड मैंने यूज किया था मोमेंटरी. यहाँ से जर्नी शुरू की धार, ये फर्स्ट धार आपको विदिन 10 raised to minus 14 सेकंड में सुनाई देगा. सो एवरेज में बोल रहा हूँ, ये सबका एवरेज यानी यही ऑर्डर में जनरल आएगा. सो 10 raised to minus 14 सेकंड वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोस्ट आईएमपी पॉइंट. ये फॉर्मूला याद रखना है. थ्योरेटिकली मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि पूछने के चांसेस ठीक ठाक, क्योंकि इसके बाद की थियरी बहुत ही आईएमपी है और हमने इससे पहले की वो भी आईएमपी. ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पूछे तो भी आपको बहुत इजी है. सबसे पहले बैटरी के बिना यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में देखो, तब एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 थी और एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन 0 थे. मगर जब बैटरी अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन है उसको फोर्स मिलेगा, फोर्स के कारण एक्सीलरेशन मिलने के कारण वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू होता है. नो डाउट ये पूरी कहानी में एक बार देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का एवरेज एक्सीलरेशन देखा जाए तो वो 0 है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन को कैरी कर ही नहीं पाता है. जहां से शुरू किया धार, इधर एवरेज, इधर आते आते तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा. तो ये जो प्रोसेस है वो कुछ हद तक किस तरह का प्रोसेस होगा, देखो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का. ये जर्नी अपन लोग देखे तो अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझना चाहते हो तो ये देखो स्टेप्स, अपन लोग स्टेयरकेस की बात करें, स्टेप्स. इधर से कोई मेटेलिक बॉल है वो इधर गिरेगा, देखो तो ये जो मोशन है ये मोशन हो, ये इलेक्ट्रॉन जब तक दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइजन ना हो तब तक, ये स्टेप मतलब पॉजिटिव आयन, जैसे ही ये मोशन होती तब तक उसका एक्सीलरेशन होगा. अगर ये बॉल जैसे ही स्टेप के साथ या स्टेयर के साथ स्ट्राइक होता है, कोलाइड होता है, तब उसका मोमेंटरी जो एक्सीलरेशन था वो चला गया यानी कि 0 हो गया. अब वापस जर्नी शुरू करेगा, वापस इधर 0. देखो ये धार यानी कोलाइजन, धार मतलब कोलाइजन. तो इस तरह इलेक्ट्रॉन से वो कोलाइड्स होता होता आगे बढ़ता है. वायर के अंदर भी ऐसा ही होता है, मगर इतनी स्लो प्रोसेस नहीं होती कि धार से आवाज आई फिर वापस संभला, खड़ा हुआ वापस, इस तरह में बहुत फास्ट मोशन होती है. यू नो दैट वेरी वेल, क्योंकि 10 raised to 5 तो थर्मल वेलोसिटी थी प्लस एडिशनल मिली हो तो अलग, मतलब फुल स्पीड से काम होता है. इसीलिए हम लोग पलक झपकते इलेक्ट्रिसिटी को ट्यूबलाइट शुरू होते हुए देखते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट आईएमपी पॉइंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. मुझे फॉर्मूला चकाचक चाहिए, ई टाउ अपॉन एम. पूछे तो भी डिराइव करना भी बहुत इजी है, नो डाउट. कंसेप्चुअली अच्छी तरह पढ़े हो तो. नाउ यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट थियरी, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी थियरी, और यही थियरी इस चैप्टर की बेहतरीन थियरी में से एक है. सो इसके 2-3 पार्ट्स है. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं. पहला पार्ट है obtain the relationship between drift velocity and current density. फ्रेंड्स, अभी सब लोगों को खास विनती, ये थियरी पूछने के लायक नहीं थी नो डाउट, मगर फंडामेंटली बहुत ही मस्त थियरी थी. अब जो थियरी है वो फंडामेंटली भी बेस्ट है और आईएमपी थ्योरेटिकली भी जोरदार,
प्लस न्यूमेरिकल्स भी, ये जो पोर्शन में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें से बहुत सारे बनने वाले हैं, तो बी अलर्ट, वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी थियरी ऑफ दिस चैप्टर वी वुड लाइक टू डिस्कस, सो 100% रिक्वायर्ड। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछने के चांसेस 50-50, डोंट वरी, इसके चांसेस कम, क्योंकि इसमें बहुत सारी थियरीज पड़ी है पूछने लायक। सो फ्रेंड्स, नाउ द मोस्ट टाइम पीरियड एट ईयर 2021 obtain relationship between current density J and drift velocity Vd, you can see। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कंडक्टिंग वायर, एकदम पप्पू टाइप थियरी, अगर कंसेप्चुअली पढ़ा तो मैं एक थीम देता हूँ उसको पकड़ लो। इसको अपन लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो क्या होगा, ऑब्वियसली करंट पास होगा, करंट विल फ्लो थ्रू दिस वायर। बस हमारा हीरो यही है, करंट। क्योंकि करंट डेंसिटी को फॉर्मूला जरा चेक करो, आई बाई ए, तो मुझे करंट चाहिए, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो अपन लोग पहले चार्ज के ऊपर जाएंगे, तो जरा अपन लोग पूरा टाइम, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, सपोज इन डेल्टा टी टाइम, what is the length of this wire is L, area of cross section A, suppose length of this portion is delta x। कोई बोले ये L में से delta x क्यों कर दिया, थोड़ा टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, बाकी कोई फर्क नहीं। अगर कुछ रेफरेंसेस आप देखो तो उसमें ये होगा, अपन लोग एनसीईआरटी को देखना चाहते हैं तो डेल्टा x, कोई फर्क नहीं। और ये डेल्टा x थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस, सपोज इन डेल्टा टी टाइम, यहाँ से अपन लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो एंट्री लेगा और इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन एंट्री लेता है यहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अपन लोग ऐसा समझे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से है और इस साइड जा रहा है, डोंट वरी, यानी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये चार्ज्ड पार्टिकल है वो ये रीजन को क्रॉस करके यहाँ पे आएंगे, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये डिस्टेंस कितना, डेल्टा एक्स। सपोज वी कंसीडर लेट इन स्मॉल time interval delta t, in small time interval delta t, distance traveled by charged particle or charged particles is, you can see that delta x। मगर अभी मैंने बताया कोई भी वायर में से जब करंट फ्लो होता हो, करंट फ्लो होता मतलब इलेक्ट्रॉन से चार्ज पार्टिकल पास होते होंगे, मगर वो चार्ज्ड पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी के साथ जाते होंगे अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो विल राइट लेट इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल इज डेल्टा एक्स, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल्स with velocity Vd is delta x, then delta x. What is the general formula of distance? So I will write delta x is equal to speed into time, you know that very well, so it is multiplied by delta t, Vd is the speed and time delta t। तो इतना डिस्टेंस होगा ये डेल्टा एक्स, Vd जितनी स्पीड से डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा एक्स जितना डिस्टेंस ट्रैवल करे, यानी यहाँ से एंट्री और यहाँ से बाहर निकल रहे, ये डेल्टा एक्स। ओके, तो अपन लोग तो जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स एंट्री लेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में सपोज 1000 इलेक्ट्रॉन्स एंट्री लेंगे तो 1000 बाहर आ जाएंगे। मतलब ये टाइम ड्यूरेशन में इस रीजन, ये जो सिलिंड्रिकल रीजन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1000 होंगे। क्यों, देखो 1000 यहाँ पे आए तब 1000 बाहर निकले, ये 1000 यहाँ पे आएंगे तब दूसरे 1000 एंट्री ले रहे हैं। मतलब ये अपने लोगों को ये जो सिलिंड्रिकल रीजन हमने कंसीडर किया जिसका लेंथ डेल्टा एक्स है और एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, उसका अपन लोग को वॉल्यूम फाइंड करना पड़े। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड करना है चार्ज। तो अपन लोग चार्ज अपन लोग देखे, देखो मैंने I इज इक्वल टू क्यू टी किया, अपन लोग इधर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्यों डेल्टा क्यू किया, क्योंकि डेल्टा टी स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो ये थीम चल रही वहां पे, हम थियरी को थीम के मुताबिक लेना चाहते हैं, रट्टेबाजी नहीं, हमें डेल्टा क्यू फाइंड करना है क्योंकि हमारा प्राइम टारगेट करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी का दारोमदार करंट के ऊपर है, करंट का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू दैट मींस अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस रीजन। तो डेल्टा क्यू को फाइंड करना हो तो क्या शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, याद करो,
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, एन ई, क्योंकि अपन लोग जानते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई इज द इलेक्ट्रॉन इन एन। तो अपना नेक्स्ट टारगेट मिल गया हमें एन। इस सिलिंड्रिकल रीजन में डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में कितने नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो फाइंड करने के लिए अपन लोग रेफरेंस लेते हैं लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन unit volume, it is small n. Small n represent number of electrons per unit volume. So therefore number of electrons in what is the volume of this cylindrical region, area भी है, length भी है, so obviously a delta x. So in a delta x volume it is suppose capital N. So what is the capital N? It is Na delta x. This is your, we can say that number. So number of charged particles accumulated in this region or passing through this cross section. इतने नंबर मिल गए। अब तो अपन लोग फाइंड कर सकते चार्ज। सो अमाउंट ऑफ चार्ज passing through cylindrical region in delta t time. So delta q is equal to Ne. So n is equal to, what is the value of n? Already we have found, don't worry. Na delta x into E. Na delta x into E. This is your delta q. So now current passing through this wire in delta t time, I is equal to delta q by delta t. So I is equal to delta q already Na delta x into E era upon delta t. So delta t यानी Vd, sorry delta t का delta t, there is a mistake, but already there is one formula of delta x. So there is delta x. So if you set up the value of delta x, so I is equal to Na. What is the delta x? Vd delta t. So Vd delta t into E upon delta t cancel. So what is the current? Na Vde. This is the most IMP formula. तो ये जोरदार फॉर्मूला, फ्यूचर में न्यूमेरिकल के लिए जोरदार कोई, मगर अपना ये टारगेट नहीं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी आपके सामने, व्हाट डू यू मीन बाय करंट डेंसिटी? आई बाय ए, तो आई है, ए को इससे ले आओ। सो यू कैन सी आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन वीडीई। यू कैन सी आई बाय ए इज इक्वल टू एन वीडीई, बट आई बाय ए इट इज जे। सो जे इज इक्वल टू एन वीडीई. This is another most IMP formula. If you represent in terms of vector, so n vd velocity be vector na. So this is the most IMP formula in terms of vector, and you can see it gives relationship between two quantities. Number one, current density J and drift velocity Vd. Most IMP. So this is the most IMP theory. Already we have discussed, obtain the relationship between current density J and drift velocity Vd. Most important देखो फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, एक थीम याद रखनी है, करंट डेंसिटी के लिए चाहिए करंट और करंट के लिए चाहिए चार्ज। ये रीजन में से कितना चार्ज पास हो रहा है, वो भी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो सबसे पहले ये रीजन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, और वॉल्यूम के लिए लेंथ, तो हमने ये लेंथ को डेल्टा एक्स ले लिया। Suppose in a small time interval delta t, what is the distance traveled by electron? Let the distance traveled by electron or charged particles with drift velocity Vd is delta x. Delta x is into, so delta x and Vd into delta t. Now अपने को इसमें फाइंड करना है चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होगा एन। एन फाइंड करने के लिए रेफरेंस है, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन? इट इज a into delta x. So number of electrons in a delta x volume, it is capital N suppose. So n is equal to Na delta x. Now number with you, so charge, let amount of charge passing through cylindrical region in delta t time, it is delta q. So delta q is equal to Ne. N already we have found, Na delta x. But current I is equal to delta q by delta t. Delta q, delta t, delta x already with us, Vd delta t. Set up answer I by a, J current density. मोस्ट आईएमपी। ये जो पोर्शन है उसमें खास ये थियरी है, उसमें कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स को इजी ना भी लगे, एक्चुअली इजी है, मगर ये डेल्टा एक्स डेल्टा डी अपन लोग इसलिए सब कुछ, क्योंकि टेक्स्ट बुक सिनेरियो, बाकी
ये नो डाउट एक पोर्शन को देख लो तो भी जिसे कह सकते हैं कि पता चली जाएगा कि बाद में कंसेप्ट वही आ रहा है बहुत इजीली। अगर ये ना लिखना हो तो अपन लोग डायरेक्ट जनरल भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी या फॉर्मूला वेलोसिटी का अप्लाई करो तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही का वही है, नो प्रॉब्लम। तो इसको याद रखना है। अब अपन लोग इसका सेकंड पोर्शन शुरू करने जाए। इसको याद रखने का फंडा, काफी सर इसका एक शॉर्टकट इस तरह देते हैं तो अपन लोग देते हैं मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना है तो एनएवीडी बहुत प्रैक्टिस करने से भी हो ही जाएगा नो डाउट, मगर फिर भी इसको अच्छी तरह लिखा जाए तो ऐसा एक वर्ड बनता है देखो, और ये वर्ड है वो वही लोग याद रखे जिसकी जिसे कह सकते हैं कि फ्यूचर में बीवी का नाम वीना हो या वीना के साथ पंगा लेने वाले हो या कनेक्शन होने वाला, वो प्यार से कह सकता हूँ मैं मतलब वीना और वीना मतलब मैं। तो ये वीना याद रखो तो भी याद रख सकता है वी डी ई एन ए, और जनरल फॉर्मूला एन ए वी डी ई, कुछ भी बहुत इजी। सो ये याद रखने का मैं मतलब वीना और वीना मतलब मैं यानी आई, यू नो दैट वेरी वेल। तो ये याद रखने का फंडा है, ऐसा काफ़ी जगह पे एप्लीकेशन होता है। डोंट वरी, यू कैन रिमेंबर बाय यूजिंग एनी मेथोडोलॉजी। So now we'll move towards the next target. Second part is ये first the obtained relationship between J and VD. Now we would like to deduce the Ohm's law. इसके रिलेटेड Ohm's law डिराइव करने जा रहे हैं। देखो पकड़िए जैसा सब कुछ, इसमें भी कोई दमखम नहीं था, देख लिया आपने। अब अपन लोग इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हैं, Ohm's law, और इसमें 12 क्वेश्चन पूछते हैं obtain the relationship between resistivity and we can say that relaxation time और obtain the formula of resistance। ऐसे कुछ भी फॉर्मूले पूछ सकते हैं। कोई बोले सर कुछ भी मतलब क्या, कुछ भी मतलब इसलिए क्योंकि ये ऐसा मसाला है कि आप भेल बनाने के लिए क्या कुछ भी ऐड करते जाओ, चार पांच चीजें और दूसरी दो चलो ऐड कर दो तो भेल ही बनने वाली। तो ये ऐसी सिस्टम है इसमें। एक देखो मैं बताता हूँ, ये एक हमने डिराइव किया, अब इसी के ऊपर से ये बना देंगे, कुछ भी आप बना सकते हो, आपका प्रेजेंस माइंड यूज करने का है। सबसे पहले मैं अगर ओम्स लॉ में जाना चाहूँ तो ऑब्वियसली ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, V by I is equal to R। तो अपने को पता चल गया R is equal to V by I। V अगर ये अपना डायग्राम वापस देखा जाए सो ये लेंथ जिसे कह सकते हैं डेल्टा एक्स था, इधर बैटरी को कनेक्ट कर दो तो इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E, इसमें से इलेक्ट्रॉन है वो VD जितनी स्पीड से जा रहे थे, ये सब हमने देखा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A। तो V क्या है, V is the potential difference। So what is the potential difference? Potential difference मतलब E into distance, याद करो V is equal to ED। So either E and what is this distance, delta x upon current, तो वहां से करंट उठाओ, एलिमेंट को उठाओ, so VD E N A आ गया, you can see that। अब इधर अपने को जिसे कह सकते हैं कि R के रिलेटेड पॉइंट में जाए या डेल्टा एक्स रिलेटेड पॉइंट में जाए, करंट डेंसिटी के फॉर्म में डिराइव करना हो तो मैं करंट डेंसिटी के फॉर्म में ले आऊं तो I है अपने पास A है, नो डाउट। चलो इसमें एक डायरेक्ट जनरल पॉइंट ही डिराइव करते हैं R। अब हमारा जो टारगेट है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करना। तो रेजिस्टेंस को आप अच्छी तरह जानते हो, E का फॉर्मूला अपन लोग डिराइव करें तो डिराइव करें मतलब ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, याद करो ओम्स लॉ का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं। तो क्या था फॉर्मूला ओम्स लॉ का, E इज इक्वल टू, याद करो J इज इक्वल टू सिग्मा E। सो E इज इक्वल टू J सिग्मा। तो E की जगह मैं रख देता हूँ J अपॉन सिग्मा। मैं बोला कुछ भी बिंदास फेंको फॉर्मूला, कोई टेंशन नहीं, डेल्टा एक्स VD ENA। अब अपन लोग ये भी जानते हैं कि J का फॉर्मूला सिग्मा, सिग्मा यानी 1 अपॉन रो। तो ये अपन लोग J को सब्जेक्ट सॉरी R में जाना चाहते हैं तो R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो का मतलब होगा, सॉरी 1 अपॉन सिग्मा का मतलब होगा रो। ये रो आ गया। अब VD का फॉर्मूला फेंको, देखो J यानी क्या है I बाय A, डोंट वरी, या J अभी थोड़ी देर के लिए J रख, चलो डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स रख देते हैं। VD का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फेंको तो इसमें ये आता है, नो प्रॉब्लम। अपन लोग क्या करते हैं पहले R इज इक्वल टू E डेल्टा एक्स VD यानी E टाउ अपॉन M इनटू E N A, याद आ गया, रेडी।
ये पोर्शन इधर का इधर। अब इसमें ई कैंसल और एम को गुलाटी मार के ऊपर भेज देते, एम इंटू डेल्टा एक्स, ये बन गया एन ई स्क्वेयर ए। तो अब डेल्टा एक्स यानी कि सिंपल जिसे कह सकते हैं कि एन ई स्क्वेयर ए, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला जनरल पॉइंट में डिराइव किया है। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा था वी डी इंटू डेल्टा टी, और ये भी सॉरी वी डी इंटू डेल्टा टी, या इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा जाए तो v इंटू डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी बाई ई। इधर ये अप्लाई करो v बाई ई, नो डाउट, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर ए, और डेल्टा एक्स का और पॉइंट डिराइव कर सकते हैं इधर से भी। आई थिंक समथिंग गोज टू रॉन्ग विद दिस फॉर्मूला, सो अपन लोग को करेक्शन में कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये जो मेथड है उसमें आंसर तो आएगा ही मगर थोड़ा लेंदी हो जाए, इसलिए अपन लोग देखो v इज इक्वल टू जनरल पॉइंट में जाए r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये अपन लोग अप्लाई करें तो भी हो जाएगा, r इज इक्वल टू वी बाई आई रो एल बाई ए। अब v इसे कह सकते हैं e इंटू एल, एल मतलब इधर डेल्टा एक्स और रो एल की जगह इधर डेल्टा एक्स, ये में इजी फॉर्म में, वो फॉर्मूला भी कोई टेंशन है उसमें डेल्टा एक्स में जाते तो थोड़ा लेंदी हो जाता। आई का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं एन ए वी डी ई, आप इसको अच्छी तरह जानते हो, एन ए वी डी ई। सो डेल्टा एक्स कैंसल, इधर ए कैंसल, तो बचेगा क्या, एन अपॉन एन ए वी डी ई इज इक्वल टू रो, क्या आ गया। अपन लोग मोस्ट टाइम भी फॉर्मूला में जाते हैं ई का ई, एन वी डी की जगह अपन लोग फॉर्मूला अप्लाई करें ई टाउ अपॉन सॉरी ई टाउ अपॉन एम, याद करो वी डी का फॉर्मूला ई टाउ एम एन ई। अब ये एम गुलाटी मार के ऊपर, व्हाट इज द फाइनल आंसर, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, नो डाउट। सो फाइनल आंसर ये रो इज इक्वल टू, एम ऊपर आ जाए ई कैंसल, तो फाइनल आंसर आई कैन राइट एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला, देखो रेजिस्टिविटी एंड टाउ का रिलेशनशिप। सो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ, ये भी मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला फॉर जेडब्ल्यू नीट, तो इसको भी जरा पी जाने का है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगेन रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मैं ओम्स लॉ के ऊपर से ले जा रहा हूँ, ओम्स लॉ भी इसी तरह प्रूव हो जाएगा, डोंट वरी। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, बट आर इज इक्वल टू वी बाई आई रो एल अपॉन ए, बट v इज इक्वल टू e इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि e इंटू लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ डेल्टा एक्स, एयर इधर डेल्टा एक्स, डोंट वरी। ए एरिया कैंसल, डेल्टा एक्स कैंसल, e अपॉन एन वी डी ई इंटू रो आ गया, वी डी की जगह फॉर्मूला e टा अपॉन एम अप्लाई करो, e कैंसल, एम ऊपर एन स्क्वायर टा। इसमें एक बेहतरीन पॉइंट डिस्कस करते हैं, मोस्ट आईएमपी, ये फॉर्मूला याद रखना, यू कैन सी रेजिस्टिविटी इज डिपेंड्स अपॉन फ्यू फैक्टर्स लाइक एन एंड टाउ, क्यों और कैसे। अब जो पॉइंट है मोस्ट आईएमपी फॉर मेटल or for conducting material, most important from today, if you are discussing about metal or conductor, then don't forget what happened, temperature increases, जोरदार point, temperature increases then resistivity increases, most important। Why? And resistivity increases, that means resistance increases, but why? Because temperature increases then relaxation time decreases। कोई बोले कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर कोलाइजन हुआ, फिर इधर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो पॉजिटिव आयंस कोलाइज सॉरी ऑसिलेशन कर रहे थे, ये पिए हुए तो था, उसको और पिला दो, यानी टेम्परेचर तो था और बढ़ाओ, तो ये इस तरह ऑसिलेशन शुरू करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन आप सपोज देखो ये आराम से निकल गए इलेक्ट्रॉन, अगर अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव आयंस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेशन करते होंगे, और ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का कोलाइजन होना बहुत फास्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहला कोलाइजन इधर एक्सपीरियंस करेगा, दूसरा इधर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन कोलाइजन इधर करे, मगर ये कोलाइजन इधर होने से पहले इधर ही हो जाएगा, देखो, क्योंकि इधर कोई पॉजिटिव आयंस का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, सो कोलाइजन बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लगे, तो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। सो कीप इन माइंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीजेस, and tau decreases, so resistivity increases, you can see most IMP, but only for metal,
don't forget. Now we discuss the most IMP point, semiconductor. जो अपना chapter last है 14. In semiconductor, if you increase the temperature, then number density of charge carrier increases, or n increases, then rho decreases. So most IMP, क्यों टेम्परेचर बढ़ेगा तो n बढ़ेगा? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस, then in semiconductor lots of covalent bonds are broken, and because of the breaking of covalent bonds electrons become free. ये चैप्टर 14 में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी. मुझे ये दिमाग में चाहिए चकाचक. मोस्ट आईएमपी, जस्ट चेक इट. व्हाट हैपन हियर? ये दूसरा पोर्शन है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर. तो ये हमने थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत इजी था, इधर रिप्रेजेंट किया हुआ फॉर्मूला. ये फॉर्मूला जेडब्ल्यू नीट के लिए तो आईएमपी प्लस ये दो पॉइंट्स के लिए भी आईएमपी. व्हाट हैपन फॉर मेटल? फॉर मेटल इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस. तो आज से मेटल और कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टिविटी बढ़े, यानी रेजिस्टेंस बढ़े. मगर सेमीकंडक्टर में उल्टा, टेम्परेचर बढ़े रेजिस्टिविटी कम होगी, मतलब रेजिस्टेंस कम होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर से हमने डिराइव किया. तो फ्रेंड्स ये दूसरा पार्ट भी जोरदार, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये जो रो है उसके ऊपर से अपन लोग एम एन स्क्वायर टाउ, ये रेजिस्टिविटी के ऊपर से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट. तो ये जोरदार पॉइंट था. तो ये थियरी पूछने के चांसेस है फ्यूचर में. अब आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, बी बाय ए का रेशियो लेके और जनरल इक्वेशन दोगे तो आर का भी जिसे कह सकते हैं ऐसे फॉर्मूला के फॉर्म में कुछ और पॉइंट इधर आएगा. क्या आएगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इधर एल बाई एक्स्ट्रा आएगा, बाकी कुछ नहीं. इसलिए मैंने वो जर्नी है वो शॉर्ट कर दी. सो दिस वन इज द मोस्ट टाइम पॉइंट. तो ये पूरे सेगमेंट में पहली थियरी जोरदार, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये फॉर्मूला तो याद ही रखेंगे, बिना उठाओ. और ये जो तीसरा फॉर्मूला डिराइव किया हो मास्टरपीस है, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ. ये तीन फॉर्मूले चकाचक आपके दिमाग में होने चाहिए. मोस्ट आईएमपी. नंबर 1 J is equal to NVD, number 2 I is equal to VD NE, that means NAVD, or number 3 resistivity rho is equal to M upon NE square tau. Just analyze, then we'll think about the next. ओके, सो टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा अपने लग रहा है लेक्चर के मुताबिक. सो ये लेक्चर को यहीं पार्ट को पूरा करते हैं. मगर आपने देखा बहुत ही बेहतरीन है पॉइंट्स. थ्योरेटिकल पोर्शन को आज डेवलप किया है. नेक्स्ट लेक्चर यानी पार्ट 3 है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे मोस्ट टाइम भी. तो फ्रेंड्स टुडे वी डिस्कस करंट डेंसिटी, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देन मोस्ट टाइम की रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, and very IMP formula of resistivity. So just revise these all points very carefully, and you know that very well. These all parts are very IMP for theoretical point of view and board point of view as well as JEE. So just prepare it. Thanks.